everyone, welcome back to Hey Coder. So today we will be solving a most interesting question which was asked in the Netcode technical round. So firstly, understand what does this question says is there is a town where n people live in that town. The houses are arranged in a row. Means there is a town. There are n houses arranged in a row. There are n peoples. Okay, the personality of each owner is represented by lowercase English characters. Each person is in fight with all those people who have the mirror personality to one in the fight. Okay, the each owner is represented by the English alphabets or English characters that are in a lowercase, for suppose A, B, C to Z, and they means A will fight with Z. Here what is mirror personality is, let's A be the string ABCD up to YZ, and let B be the reverse of A. So this is the mirror of A. Okay, means A fight with Z, B fight with Y, C fight with W. Likewise, every character fight with the opposite character. Like if we take it in the reverse order, Z will fight with A. Okay, so what we have to find is the function. We have to write the function that takes two parameters, number and a string, input string. uh, let's understand this example. We have given the length of string is 3, means there are 3 people in the town, and the owner has the personality of A and Z. What we have to return is, oh no, what does this have? Okay, so what is the output here is 2. How to A will fight with Z? This is the one option, and the another is the second A fight with Z. क्वेश्चन समझा क्या? वी हैव गिवन एन स्ट्रिंग AAZ. यहाँ पर है ना, A जो है वो Z से फाइट करेगा. जो भी अपोजिट पर्सनालिटी है ना, मिरर पर्सनालिटी, उनके साथ फाइट करेगा. तो A Z से फाइट करेगा, एंड द A which is present at first index will also fight with Z. तो here the output will become 2. समझा? अभी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? Okay, the second example is VF. Wait a second, I'll write here. VF and HKY. HKY. इधर मैंने सबका मिरर पर्सनालिटी लिखा है. ए का Z है, बी का Y है, एंड सो ऑन. अभी ये वाले स्ट्रिंग में यू कैन चेक कि कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का मिरर पर्सनालिटी नहीं है. सो हियर द आउटपुट मस्ट बी 0. समझा? अभी थर्ड क्या है? WJL AHOHPEC. अभी ये वाले इनपुट में W का मिरर पर्सनालिटी इज D, नहीं प्रेजेंट है स्ट्रिंग में. J का मिरर पर्सनालिटी इज Q, नहीं प्रेजेंट है स्ट्रिंग में. A का मिरर पर्सनालिटी इज Z, स्ट्रिंग में नहीं प्रेजेंट है. H का मिरर पर्सनालिटी इज S, नहीं प्रेजेंट है. O का मिरर पर्सनालिटी इज
L. Okay, L का mirror personality is O. The output is count as 1. मूव फर्दर, एच का मिरर पर्सनालिटी नहीं प्रेजेंट है, पी का मिरर पर्सनालिटी के है नहीं प्रेजेंट है, ई का मिरर पर्सनालिटी वी है एंड सी का मिरर पर्सनालिटी एक्स है. सो अपना आउटपुट मस्ट बी 1. लेट्स चेक. या आउटपुट इज 1. ओके, सो हाउ वी अप्रोच टू दिस सोल्यूशन. मैंने पहले क्या सोचा था कि हैश मैप बनाएंगे एंड सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कराएंगे, मतलब हाफ ऑफ द कैरेक्टर स्टोर कराएंगे ए से लेके एम तक एंड वी विल कंपेयर ए एंड जेड को. बट अगेन आई थॉट कि कैसे, मतलब ए और जेड को मैं कैसे कंपेयर कराऊं. ठीक है, देन मैंने क्या सोचा, मेरे को तो पता है मेरे पास कितने कैरेक्टर्स रहेंगे, 26 कैरेक्टर्स. So what I'll do is I will make an array of 26 characters, right? I will make an array of 26 characters. यहाँ पे suppose A, B, C वैसा 26 कैरेक्टर्स का मैं ये बनाऊंगी, array बनाऊंगी. ठीक है, and what I will do is, wait a second, जब भी मेरे को कोई, let's take an another example, one of the best example, A S Z Z Z. यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला ए जो है वो 3 जेड्स के साथ फाइट करा सकता है, सो आउटपुट विल बी 3. एंड देन अगेन ये ए भी 3 जेड के साथ फाइट करा सकता है, कर सकता है. तो व्हाट द आउटपुट विल बिकम इज 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6. मतलब अभी मेरे पास अगर ए का काउंट है एंड अगर मेरे पास जेड के काउंट है, तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है. ये एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जब मेरे को ए मिला, व्हाट आई विल डू इज 0th इंडेक्स पे मैं ए का काउंट स्टोर करा दूंगी 1. ठीक है, जब मेरे को फिर से ए मिला, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट इंक्रीमेंट द काउंट विद 2. ठीक है, एंड व्हेन आई गॉट जेड, सो मैं लास्ट में जाके जेड का काउंट 1 कर दूंगी. एंड जब मेरे को वापस जेड मिला तो जेड का काउंट 2 हो जाएगा. एंड जब मेरे को वापस जेड मिला तो जेड का काउंट क्या हो जाएगा, 3 होगा. ठीक है, फाइनल में मेरे को कुछ नहीं करना है, जो काउंट मेरे को मिला है ए का और बी का, अभी वो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ए को जेड के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है. 0th इंडेक्स और लेंथ -1 वाला इंडेक्स, वही करना है ना. मेरे को लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब 25th एलिमेंट है ये, मतलब 26 उसका लेंथ है, -1 करूं तो आ जाएगा 25. अभी सपोज मेरे पास बी है, दूसरा इनपुट ले लो, ए बी वाई जेड जेड एंड जेड. अभी यहाँ पर b का वैल्यू 1 है. ठीक है, एंड जब मैं y एनकाउंटर की तो मैंने इधर जाके एरे में 1 कर दिया. अभी मेरे को ये वाला मैं एलिमेंट कैसे एक्सेस करूं, तो मैं सिंपल है, कुछ नहीं करूंगी, -i कर दूंगी. मैं i से आइटरेट कर रही हूँ ना, जब i 0 से लेके लेंथ तक आइटरेट करूंगी. जब मेरा i 0 था तो 26 -1 -0 25th एलिमेंट एक्सेस होगा. ठीक है, जब यहाँ पर i की वैल्यू 1 है तो कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा मेरा, 24th एलिमेंट, मतलब लास्ट सेकंड वाला इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे. तो इस तरह व्हाट वी गेट इज 24 एंड i का वैल्यू जब 1 है तो मेरे को 24. सेम चीज लूप लगानी है. कहाँ तक लगाओगे, लेंथ डिवाइड बाई 2 तक. पूरा करने की जरूरत नहीं है ना, जब अपन यहाँ आइटरेट करा रहे हैं तो m को मेरे को n के साथ ही कंपेयर कराना है ना, तो सिर्फ लेंथ डिवाइड बाई 2 तक ही आइटरेट कराओगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी मेरे को क्या मिला, 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, 2 × 3. ठीक है, ये मेरे एक आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो कि है 6. ठीक है, अभी
एरे में आइटरेट करा रही हूँ ना, जब मेरा एरे 1 हुआ तो मैं चेक करूंगी वाई एग्जिस्ट कर रहा है क्या। हाँ कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आंसर इज इक्वल्स टू आंसर, आंसर मेरा क्या था 6 था, 6 प्लस array of I into array of 26 minus I minus 1। समझा, क्लियर है। अभी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया है सो यू कैन इजीली राइट द कोड। अभी कोड में जाते हैं एंड यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, जब मैं b इंटू वाई वाले एलिमेंट के साथ 1 इंटू 1 कराऊंगी 1 हो जाएगा, तो आउटपुट में मेरे को मिलेगा 7। ठीक है, तो मैं ये वाला स्ट्रिंग है ना, मैं मैनुअली एंटर कर देती हूँ यहाँ पर, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू AABY 1 2 3 Z। ओके, अभी क्या करना है स्टार्ट में, जो भी मेरे को मतलब मेरे को स्ट्रिंग में आइटरेट कराना है और एरे में स्टोर कराना है। ठीक है, एरे में स्टोर कराने के लिए एरे डिफाइन करते ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट 26 साइज है, और I प्लस सॉरी I लेस देन s डॉट लेंथ, I प्लस प्लस str लिख लो, str डॉट लेंथ। ठीक है, अभी क्या करना है, वो पोजीशन पे जाके मतलब ARR ऑफ, पहले तो वो कैरेक्टर एक्सेस करेंगे, कैर ch इज इक्वल्स टू str डॉट कैर एट I। ठीक है, मतलब मेरे को फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस किया मैंने, ये a एक्सेस किया मैंने, अभी मेरे ch में a स्टोर है, अभी मेरे को ये a को है ना ये 0th इंडेक्स पे स्टोर कराना है, और जब मेरे को अगेन a मिलेगा तो मेरे को इंक्रीमेंट कराना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ch माइनस a प्लस प्लस। ठीक है, फिर से जब a मिलेगा ना वो प्लस प्लस करेगा। जब अपन इनिशियलाइज करते हैं एरे को तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है ना वो 0 होते हैं। जब ये चीज करूँ तो क्या होगा, ch माइनस ए, मतलब a माइनस एस की वैल्यू किए, a माइनस ए किया तो 0, मतलब एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे वो क्या करेगा, प्लस प्लस परफॉर्म करेगा, मतलब 0 था तो वो 1 कर देगा। इनिशियली जब मेरे को a मिला तो वो 1 करेगा, वापस लूप में जाने के बाद ch का वैल्यू वापस से a है, तो फिर वो अगेन जाके आइटरेट करके इसको 2 कर देगा। समझा, अभी मेरे स्ट्रिंग में वैल्यूज फिल, एरे में वैल्यूज फिल हो गए। ठीक है, अभी मेरे को हाफ ऑफ द लेंथ वापस आइटरेट कराना है, I लेस देन एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2। ठीक है, I प्लस प्लस, अभी क्या कर रहे हैं अपन, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ऐड कर रहे थे ना, पहले एक मेरे को मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा, बट बी के लिए भी तो अपन कर रहे थे आगे जाके, तो इंट ऑफ आंसर इनिशियलाइज कर लेते 0। ठीक है, अभी अपन समझते हैं इसको, मैं लिख लेती हूँ पहले। ठीक है, एरे ऑफ आई को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने बोला था 26 माइनस 1 माइनस आई। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अभी आंसर 0 है, जब मेरे को a मिला, a कितना था काउंट 2, z का काउंट कितना था 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, आंसर में क्या स्टोर होगा, 6 स्टोर होगा। बट अभी एरे पूरा आइटरेट नहीं हुआ है ना, b और y के लिए भी तो चलेगा, फिर वो सब मेरे को आंसर में ऐड करते रहना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस इतना ही। अभी प्रिंट करा लेते और चेक करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट क्या प्रिंट कराना है, आंसर सेमीकोलन, रन करते हैं। ओके, ये देखो आंसर 7 आया। अभी दूसरे स्ट्रिंग के लिए ट्राई करते हैं एक बार। मैंने सपोज ऐड किया c और 2 y's लिए, तो कितना आना चाहिए, 7 हो रहा था, ये c के साथ 1 y 8 होगा,
और ये सी के साथ दूसरा वाई, 9 आउटपुट आना चाहिए। 9 आया, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज गो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।